Hello friend, Assalamu alaikum. Today we are going to talk about the synthesis of bile acid and where the bile acid should be produced. Do you know where the bile acid should be produced? Bile acid should be produced in our liver, and it helps us to different mechanism in our stomachs, as like degradation of lipid and absorption. After that absorption of lipid, lots of mechanism it has. So we are going to talk about bile acid. At first we know to definition of the bile acid. What is the definition of bile acid? Let's see here. Synthesis of bile acid. Bile acid is the made of 24 carbon atom and two or three are hydroxyl to oxyl group. Among 24 carbon, 2 or 3 are hydroxyl group. Now, in the steroid nucleus and side chain ending is carboxyl group. Now, it is also amphipathic in nature. It is amphipathic in nature. It possesses both polar and non-polar group. Why? Because it is amphipathic in nature. So, it possesses both. It possesses both polar and non-polar group. It contains bile acid. Do you know bile acid contains emulsifying agent? Already I told you that bile acid contains emulsifying agent which help us to digestion of the lipid, absorption of the lipid after digestion. Let's see here. It contains emulsifying agent in the intestine and helps in the digestion. And after digestion, absorption should be take place. Absorption should be take place. Usually, bile acid help in the digestion of lipid. Let's see here. The synthesis of primary bile acid take place in the liver. Where this synthesis take place? Let's see. Synthesis of bile acid takes place in the liver. Do you know? This takes place in the liver. Now we are going to discuss about the cycle. How the bile synthesis takes place in our body. So let's see here. Cycle of synthesis of bile acid. Now, cholesterol. Do you know cholesterol? यदि आपको कोलेस्ट्रॉल के बारे में पता नहीं है तो we are also going to talk about this. What is cholesterol? So let's see here. Cholesterol. About 1 gram of cholesterol is synthesized per day in the adult. 1 gram, 1 ग्राम कोलेस्ट्रॉल हमेशा एक दिन में 1 ग्राम कोलेस्ट्रॉल हमारे अंदर एडल्ट के अंदर सिंथेसाइज होता है. ठीक है. और देखिए ऑलमोस्ट ऑल टिश्यू ऑफ द बॉडी हेल्प्स इन द सिंथेसाइज ऑफ कोलेस्ट्रॉल. ऑलमोस्ट जितना हमारे बॉडी में जितना टिश्यू है ना सब इन्वॉल्व करता है प्रोडक्शन करने के लिए क्या कोलेस्ट्रॉल.
उसी से हम लोगों को ज़्यादा मतलब ऑयली नहीं खाना चाहिए। 1 ग्राम बताइए, 1 ग्राम अगर हमारे अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा है डेली, तो हमारा लाइफ 60 ईयर बचना है। 60 या 70 80 जितना भी लाइफ हो, मतलब जीने का जितना लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो। अब बताइए इतना दिनों में हमारे अंदर कितना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल जमा हो सकता है। सो हम लोगों को ज़्यादा ऑयली या जंक फूड वगैरह नहीं खाना चाहिए। लेट्स सी हियर, in cholesterol synthesize the largest contribution is made by the liver। हमारे अंदर कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज जो होता है, तो सबसे ज़्यादा हार्डवर्क, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कौन करता है? तो लीवर करता है। लीवर क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसाइज कराता है। लीवर में कितना परसेंट कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज होता है? 50%। एंड इंटेस्टाइन में कितना होता है? 15%। 15 होने को 15 होता है। और देखिए स्किन भी कराता है। एडिनल कोटेक्स also involved in the synthesis of the cholesterol, and ETC means like a tissue, and other are also helps in the synthesis of cholesterol। So let's see here, the enzyme involved in the cholesterol synthesis are found in the cytosol। तो पता है आपको, जो इंजाइम इन्वॉल्व होता है इसमें कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज कराने के लिए, वो कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है ये इंजाइम? कहाँ से आते हैं लोग? तो ये आते हैं साइटोसोल में से। कहाँ से आते हैं? साइटोसोल इसका घर है। साइटोसोल सिंथेसाइज होने का घर है, ये कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज होने का घर है। तो आते हैं साइटोसोल से ये लोग। लेट्स सी हियर, तो हम कोलेस्ट्रॉल के बारे में जान गए क्या होता है कोलेस्ट्रॉल, कितना बॉडी में हमारे प्रोड्यूस होता है हर एक दिन। 1 ग्राम, देखो भाई 1 ग्राम जब ऐसे प्रोड्यूस होगा ना, तो हम एकदम मोटे हो जाएंगे, हमारा शादी भी नहीं होगा फिर। देखो ये मेरा फ्रेंड है एक, उसका नाम है कोलेस्ट्रॉल। इट्स ओनली ट्रिक हाउ टू मेमोराइज द बाइल एसिड सिंथेसाइज साइकिल। एक मेरा फ्रेंड है, उसका नाम है कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। अब मतलब उसके अंदर कुछ ऐसा इंजाइम प्रोड्यूस होने लगे कि मतलब उसका शादी करने का एकदम चस्का लग गया था। अब मेरे को शादी करना है पापा, मेरे को शादी करना है पापा, ऐसा बोल रहा था अपने पापा से। तो वो इंजाइम का नाम क्या होता है? 7 अल्फा हाइड्रो ऑक्सीलेज। 7 अल्फा हाइड्रो ऑक्सीलेज ये इंजाइम है जो मेरे फ्रेंड के अंदर क्या हो रहा था? एक्टिवेट हो रहा था। कोलेस्ट्रॉल के अंदर एक्टिवेट हो रहा था। तो उसका मतलब जो बाप है, उसका जो पिता है, उसका शादी करा देता है। जब शादी करा देता है तो उसकी वाइफ आती है। तो वो पता है ना, वो वाइफ लोग थोड़ा बड़ी ही रहती है, बहुत अच्छी रहती है। तो उसका नाम, यूनिक नाम सब लोग अपने वाइफ का रखते हैं। अरे बाबू सोना क्या रखते हैं ना। तो इसने कोलेस्ट्रॉल ने बोला मेरे जैसा नाम होना चाहिए, थोड़ा यूनिक। तो इसमें रख दिया 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल। 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल ऐसा बोला आता था, हाय मेरे 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल, हाउ आर यू। एंड आफ्टर दैट देखिए, तो जब इतना यहाँ तक होता है, जब शादी होने के बाद आता है, तो यहाँ हो जाता है NADPH प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन भी चाहिए। अब ये दोनों को, अब साथ में तो भाई ऑक्सीजन हाइड्रोजन सब चाहिए ना। NADP, अब देखिए ये ऐसे चेंज हो जाता है इसमें। अब ये भाई कोलेस्ट्रॉल चेंज हो गए NADP में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब देखिए ये लोगों को बच्चा चाहिए था। अब पता है ना, अब दादा होते हैं, मतलब घर में सब फैमिली होते हैं, तो वो लोगों को पोता भी चाहिए। बोलते हैं नहीं मेरे को पोता चाहिए, अब साल भर हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल 5 साल हो गए, फैमिली प्लानिंग भी करते हैं। तो इसके बाद देखिए ये दोनों क्या करते हैं? बच्चा जन्माते हैं। तो बच्चा जन्माते हैं तो एक लड़की हो जाती है, एक लड़का हो जाता है। सपोज ये दोनों बॉयज़ हैं, ठीक है, बॉयज़ हैं सपोज। तो बॉय, तो ये सेवरल टाइम कुछ करते हैं, मतलब कंजुगेट करते हैं। कंजुगेट करने के बाद 2 लड़के पैदा होते हैं। उसका एक का, बड़े का नाम रख देते हैं कोलिक एसिड, और जो छोटा होता है वो बहुत बहादुर होता है। पता है ना, छोटा लोग बहुत, जो छोटे बच्चे घर में होते हैं बहुत अचाट होते हैं, तो उसका नाम रखता है चिनोडिहाइड्रोक्सीकोलिक एसिड। तो पता है यूनिक रहते हैं, तो यूनिक नाम भी है। तो उसके बाद क्या होता है कि मतलब ये दोनों सपोज 20 ईयर्स का हो जाते हैं। 20 ईयर्स का हो गए। अब 20 ईयर्स का हो गए तो ये लोग जाते हैं कॉलेज में।
अब कॉलेज में जब जाते हैं तो देखो भाई, अब कॉलेज में गए तो लड़कियां बहुत सारी होती हैं और क्यूट क्यूट लड़कियां होती हैं, तो प्यार तो हो जाएगा। अब देखो ये दोनों भाई को प्यार हो जाता है किससे? ग्लिसरीन एंड टोरिन से। अब ग्लिसरीन और टोरिन एक दोनों लड़की का नाम है, क्लासमेट का, तो बहुत सुंदर होती हैं। जब प्यार हो जाता है तो देखिए क्या होता है। अब प्यार हो जाता है तो दोनों मिल जाते हैं, ठीक है ना। अब दोनों मिलेंगे, देखिए अब ऐसे दोनों मिलेंगे तो क्या बना दे? ग्लाइकोलिक एसिड बना देते हैं। अब ग्लिसरीन मिलती है एक बार इससे ग्लिसरीन मिलती है तो ग्लाइकोलिक एसिड बनाती है, एक बार कोलिक एसिड से टोरिन मिलती है तो टोरोकोलिक एसिड बना देती है। देखिए कितना लड़कियां लौंडा है आजकल के ज़माने में, बहुत शातिर दिमाग लगा रहे हैं। दोनों एक एक बार मिले तो ग्लाइकोलिक एसिड बनाए और टोरोकोलिक एसिड बनाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी सेम। अब ये छोटा भाई था, छोटा भाई यूनिक था तो ये भी कहेगा मेरा भाई बड़ा भाई कर रहा था, मैं क्यों नहीं करूँ। तो ये भी देखिए, ये इसके साथ मिलाया, ग्लिसरीन के साथ मिलाया तो ग्लाइकोकोलिक एसिड इसने भी बनाया और टोरोकोलिक एसिड इसने भी। दो गर्लफ्रेंड रखे हैं भाई, देखो कितना आगे जा रहे हैं। और उसके बाद देखिए इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया इस पे इन दोनों के अंदर काम करता है। जब काम करता है तो ये दोनों लड़कियां चेंज किस में हो जाती हैं? डीऑक्सीकोलिक एसिड में। वाह, तो दोनों लड़कियां किस में चेंज हो जाती हैं? डीऑक्सीकोलिक एसिड। एंड आफ्टर दैट लुक हियर, ये जब यहाँ पे अगर इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया काम करता है, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया जब यहाँ पे काम करता है इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, तो लिथोकोलिक एसिड में ए वाला छोटा भाई लिथोकोलिक एसिड बना लेता है और बड़ा भाई डीऑक्सीकोलिक एसिड बना लेता है। देखिए तो हमें यही चाहिए था। दिस इज ओनली ट्रिक्स फॉर इंटरटेनमेंट, डोंट माइंड इट। सो अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम हो या किसी भी चीज़ की ट्रिक चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और इससे भी अच्छा ट्रिक मैं बनाता हूँ, बनाकर आपको दूंगा। और ईजी हो जाता है, किसी चीज़ को मेमोराइज करने के लिए बहुत सारा ईजी हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर माई न्यू वीडियोज़। थैंक यू।